السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ شہر حیدرآباد میں واقع PVNR ایکسپریس وے پر 2 پہیہ گاڑیوں کا داخلہ سختی سے ممنوع ہے۔ یہ ایکسپریس وے صرف تیز رفتار کاروں اور بھاری گاڑیوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے باوجود ایک واقعے میں 4 لڑکیاں 2 الیکٹرک بائکس پر PVNR ایکسپریس وے پر جاتی ہوئی دیکھی گئیں، جو ٹریفک قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور جان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ واقعے میں شامل بائک کا رجسٹریشن نمبر TG13A0041 بتایا گیا ہے۔ میگا ای سینیٹیشن ڈرائیو کے دوران GHMC کے ذریعے 48 میٹرک ٹن ای ویسٹ جمع کیا گیا۔ کمشنر GHMC RV کرنا نے مشیرآباد سرکل کے باغلنگم پلی میں منعقد کی گئی میگا ای ویسٹ کلیکشن ڈرائیو کا دورہ کیا اور الیکٹرانک کچرے کو جمع کرنے اور سائنسی انتظام کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ یہ مہم GHMC کے 271 مقامات پر چلائی گئی۔ ای ویسٹ اکٹھا کرنے کے لیے 94 گاڑیاں استعمال کی گئیں۔ جمع شدہ فضلہ کو پروسیسنگ یونٹس میں منتقل کیا گیا اور اسی طرح منگل کو بھی ای صفائی مہم چلائی گئی۔ 12 دنوں میں 4445 میٹرک ٹن اضافی فضلہ منتقل کیا گیا۔ GHMC کی خصوصی صفائی مہم زوروں پر جاری ہے۔ 12ویں دن ایک خصوصی صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد کوڑا کرکٹ کے خطرے سے 2-4 مقامات کو سیلفی پوائنٹس میں تبدیل کرنا تھا اور GHMC کے تمام 300 وارڈوں میں کل 2803 علاقوں، پوائنٹس، فٹ اوور برج، فلائی اوور، کوڑا کرکٹ کے خطرے سے 2-4 مقامات اور پارکس میں صفائی کا خصوصی پروگرام شروع کیا گیا۔ اب تک اضافی 3290 میٹرک ٹن میونسپل فضلہ اور 1156 تعمیراتی فضلہ، کل 4445 میٹرک ٹن اضافی کچرا ہٹایا جا چکا ہے۔ وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی اپنے دورے ستوپلی کے دوران 9 منتخب سرپنچوں کے اعزازی پروگرام میں موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ آگ کا گڑھا بناتے ہیں، لوگ آپ کو آگ کے گڑھے میں ڈھکیل دیں گے۔ BRS رہنماؤں پر وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی کی تنقید۔ تلنگانہ تحریک کے دوران نوجوانوں کو مشتعل کرنے والے نہیں مرے بلکہ ہزاروں معصوم بچے مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود غرضی کے لیے دوبارہ اضلاع کے نام پر تحریکیں چلائیں گے، ہم آگ کے گڑھے بنائیں گے، ہم عام لوگوں کی قربانی دیں گے۔ حرکت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ ہوشیار ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقینی طور پر اضلاع اور ریونیو ڈویژن اور منڈلوں کی غیر سائنسی تقسیم کو درست کریں گے۔ ہم قانون ساز اسمبلی میں بحث کریں گے، ایک ریٹائرڈ جج کے ذریعے ایک کمیٹی بنائیں گے اور لوگوں کی رائے معلوم کریں گے۔ کابینہ میں بحث کریں گے اور اس طریقے سے مناسب تنظیم نو کریں گے جو عوام کے حق میں ہو۔ నీకు అధికారం ఉంటే ఒక పద్ధతి, నీకు అధికారం లేకపోతే రాష్ట్రాన్ని అగ్నిగుండంగా ఎలా చేసి ఆ అగ్నిగుండం మంటలని చలి కాసుకోవాలి అని తాపత్రయపడుతున్నావు నువ్వు. ఆ అగ్నిగుండాన్ని దాని మీద చన్నీలు ఎలా చల్లాలో మాకు బాగా తెలుసు. ఆ మాజీ మంత్రికి పదే పదే చెబుతూ ప్రజలను రెచ్చగొట్టద్దు, రెచ్చగొట్టే ప్రవర్తన మానుకోండి. فشرائز کارپوریشن کے چیئرمین متو سائی کمار نے ایک بار پھر CM ریونت ریڈی اور کانگریس حکومت کی تعریف کی ہے۔ متو سائی کمار، جنہوں نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی، CM ریونت ریڈی اور PCC سربراہ مہیش کمار گوڑ کی تصاویر کے ساتھ خصوصی پتنگیں بنائی ہیں۔ پتنگیں جو سنکرانتی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک بصری کشش بن گئی۔ متو سائی کمار، جنہوں نے ماضی میں رائزنگ تلنگانہ کے نام سے اختراعی پروگرام کیے ہیں تاکہ کانگریس کی فلاحی اسکیموں سے عوام کو آگاہ کیا جا سکے، کئی کانگریس لیڈروں اور کارکنوں نے متو سائی کمار کو مبارکباد پیش کی۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام کے دوران کل 37 درخواستیں اور شکایات موصول ہوئیں۔ GHMC کے دائرہ اختیار کے تحت 12 زونوں میں کل 170 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے شمس آباد زون میں 40، قطب اللہ پور زون میں 33، کوکٹ پلی زون میں 24، سری لنگم پلی زون میں 18، ملکاج گری زون میں 17، اپل زون میں 14، LB نگر زون میں 11، راجندر نگر زون میں 6، چار مینار زون میں 1 شکایت موصول ہوئی۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل کمشنرز سبھدرا دیوی، پنکجا علی ویلو، منگتا ارو، CE رتناکر، محکموں کے سینئر افسران اور دیگر نے شرکت کی۔
वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने केस की समाअत में शिरकत की, जिसमें तेलंगाना हुकूमत ने एपी के मुजव्वजा पोलावरम नल्लामल्ला सागर आपाशी प्रोजेक्ट पर एतराज़ात दाखिल किए। तेलंगाना हुकूमत की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी, तेलंगाना के एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी, एडवोकेट वोहराजी, साबिक चेयरमैन CWC सत्विक सुमंत और प्रियांश ने की। अदालत में महकमे आपाशी के तमाम बैन रियासती विंग इंजीनियर भी मौजूद थे। साबिक MP हनुमंत राव, जिन्होंने तेलंगाना रियासती हुकूमत की तरफ से चाइना मांझे पर पाबंदी पर खुशी का इजहार किया। हनुमंत राव ने संक्रांति का त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद के बतकुमा कुंटा के एक मशहूर पार्क में पतंग उड़ाई। उन्होंने सरकारी एहलकारों की तनख्वाहों में कटौती के बारे में रेवंत रेड्डी के फैसले पर खुशी का इजहार किया। सबको अपने वालिदैन का ख्याल रखने को कहा और सबको संक्रांति की मुबारकबाद दी। इस तकरीब में बागंबरपेट के मद मुकाबिल कॉरपोरेटर शंबुल्ला, श्रीकांत गौड़, नारायण स्वामी, देदी रामबाबू, गड्डम श्रीधर और कांग्रेस के दीगर सीनियर लीडरों के साथ हनुमंत राव ने बतकुमा कुंटा में पतंग उड़ाई। सैयदा फलक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडर ने महाराष्ट्र म्यूनिसिपल इंतखाबात 2026 के ज़िमन में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की हुकूमत में राम मंदिर को बनाया गया तो कांग्रेस की हुकूमत में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसलिए दोनों पार्टी ही मुसलमानों के हक में नहीं है और ये दोनों मुस्लिम मुखालिफ पार्टी हैं। देखिए सैयदा फलक AIMIM महाराष्ट्र म्यूनिसिपल इलेक्शन के ज़िमन में कैंपेन के दौरान उनका क्या कहना है और इसके अलावा उन्होंने 15 जनवरी को तमाम अवाम से मुत्तहिद होकर पतंग के निशान पर वोट डालने की अपील की ताकि मजलिस को मजबूत बनाया जा सके। किया था वो कांग्रेस थी जिसने UPA को सपोर्ट किया था, वो कांग्रेस थी जिसने ट्रिपल तलाक कानून पर खामोश थी, वो कांग्रेस है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं बोलती, वो कांग्रेस है जिसने कर्नाटका में हिजाब बैन को नहीं हटाया, वो कांग्रेस थी जिसने जुनैद और नसीर को जिंदा जलाने वालों को राजस्थान में कोई सजा नहीं दी, और वो कांग्रेस है जिस संगारेड्डी जिले कलेक्टर P प्रवनिया ने कहा है कि तमाम महकमों के लिए ये बहुत ज़रूरी कि वो जिले में सड़क हादसात को रोकने के लिए तालमेल के साथ सड़क की हिफाजत को मजबूत करने के इक़दाम करें। कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर की सदारत में जिले सतह के रोड सेफ्टी कमेटी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कलेक्टर ने गुज़िश्ता मीटिंग में किए गए फैसलों के मुताबिक मुतल्लिका लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान के जरिए मुश्तरका तौर पर किए गए मुआयने का जायजा लिया। उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स पर शनाख्त किए गए मसाइल, हादसात की वजूहात और उनकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर ओहदेदारों से तफसीली तबादला ख्याल भी किया। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी जान की हिफाजत के लिए लाजमी तौर पर हेलमेट पहने और ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करें। रोड सेफ्टी महोत्सव के मौके पर जिले आदिलाबाद में रोड सेफ्टी बेदारी के तहत एक अजीम शान मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले SP अखिल महाजन IPS ने कहा कि हेलमेट न सिर्फ कानून की पाबंदी है बल्कि ये कीमती इंसानी जानों को बचाने का मुयस्सर जरिया भी है। उन्होंने पुलिस अमले को हिदायत दी कि वो खुद हेलमेट पहनकर अवाम के लिए एक मिसाली नमूना बने। किसी भी हादसे की सूरत में हेलमेट सर को शदीद चोट से महफूज रखता है और जान बचाने में अहम किरदार अदा करता है। संक्रांति के त्यौहार के पेश नजर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का पंडित नेहरू बस स्टैंड मुसाफिरों से खचाखच भर गया है। अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए हजारों अफराद घंटों बसों का इंतजार कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से बस स्टैंड पर मुसाफिरों का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। हैदराबाद और दीगर दूर दराज मुकामात से विजयवाड़ा पहुंचने वाले मुसाफिर यहां से अपने गाँव जाने के लिए RTC बसों का सहारा ले रहे हैं। अगरचे के RTC की जानिब से बसें फराहम की गई हैं, लेकिन मुसाफिरों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि बेशतर अफराद को सीटें नहीं मिल रही हैं और वो खड़े होकर सफ़र करने पर मजबूर हैं। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी की लहर और कोहरे की शिद्दत में इजाफा होने वाला है।
महकमे मौसमियात ने पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जबकि पूरे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में शदीद कोहरे की वार्निंग जारी की गई। महकमे मौसमियात ने जम्मू डिवीजन, शुमाल मगरबी उत्तर प्रदेश और जनूबी उत्तराखंड के लिए भी शदीद कोहरे का अलर्ट जारी किया। कौमी राजधानी दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। सफदरजंग में 3 सालों में सबसे कम दर्ज हरारत 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली के मरकजी मौसम सेंटर सफदरजंग में इससे कम दर्ज हरारत 18 जनवरी 2023 को 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली में सबसे कम दर्ज हरारत लोधी रोड इलाके में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जुनूब मगरबी दिल्ली के आया नगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस और पालम में 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने इस 14 जनवरी तक इसी तरह का दर्ज हरारत रहने की पेशगोई की है। हालांकि इसके बाद इलाके में कमजोर मगरबी डिस्टर्बेंस के असरात से राहत मिलने का इम्कान है। कांग्रेस ने मुल्क की बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा मालियाती बजट 2026-27 के सामने सरमायाकारी में सस्ती घरेलू बचतों में गिरावट और बढ़ती हुई मौशी नाहमवारी जैसे संगीन मसाइल सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। कांग्रेस के शोबे मौसलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के बजट सेशन का शेड्यूल सामने आ चुका है और तकरीबन 20 दिनों के बाद नया बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये बजट 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर मबनी होगा, जिसकी रिपोर्ट गुज़िश्ता 17 नवंबर को पेश की जा चुकी है। ये सिफारिशात 2026 से 2031 तक मरकज और रियासतों के दरमियान टैक्सों की तकसीम के तरीक़ेकार को तय करेंगे। जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर इन बुनियादी मसाइल का हल ना निकाला गया तो GDP की बुलंद शरह नमो और रोजगार के मौके पैदा करना महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट टैक्स में छूट और भारी मुनाफे के बावजूद निजी शोबे सरमायाकारी से कतरा रहे। पूरा मुल्क लोहड़ी त्योहार बड़े जोश व खरोश के साथ मना रहा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भी बाशिंदगान मुल्क को मुबारकबाद पेश की गई। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ पार्टी के सरकारी हैंडल पर एक पोस्ट किया गया। अकीदे, काश्तकारी और नई फसल के त्योहार लोहड़ी पर आप सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। दुआ है कि ये मुकद्दस त्योहार आप सभी के लिए खुशी, खुशहाली और अमन लाए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने तहनीती पैगाम में कहा, लोहड़ी के पुरमसरत मौके पर सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि जोश व खरोश का ये त्योहार आपकी जिंदगी में बेपनाह खुशियां और खुशहाली लेकर आए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आप सभी को लोहड़ी की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। उन्होंने कहा, यह त्योहार आप भी के लिए ढेरों खुशियां, अमन और खुशहाली लाए। राहुल गांधी ने कहा, हमारे इन किसान भाइयों और बहनों को खुसूसी मुबारकबाद जो अपने घरों से दूर एहतजाज पर बैठे हैं और खराब मौसम के बावजूद अपने हुकूक के लिए लड़ रहे। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी इस त्योहार की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के साथ अपने ट्वीट में त्योहार की एक तस्वीर भी शेयर की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोडियन मिलेट कफ सिरप की गैर कानूनी तिजारत के एक बड़े मामले में पुलिस ने अहम पेशरफ्त करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आदित्य जायसवाल के तौर पर हुई, जो इस पूरे नेटवर्क के मुबैना मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का खालाजाद भाई है। आदित्य जायसवाल की दुकान स्वास्तिक फार्मा के नाम से सपत सागर दवा मंडी में वाक़ है, जहां से दवाओं के कारोबार की आड़ में मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही थी। पुलिस हुकाम ने बताया कि आदित्य जायसवाल गुज़िश्ता 7 से 8 बरसों से इस दुकान को चला रहा था। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि शुभम जायसवाल के वालिद भोला प्रसाद जायसवाल ने रांची में शीली ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी कायम की थी, जिसकी देखरेख शुभम जायसवाल और उसके वालिद मुश्तरका तौर पर करते थे। इल्जाम है कि तकरीबन 2 बरस कबल शुभम जायसवाल ने अपने खालाजाद भाई आदित्य जायसवाल के साथ मिलकर चंद फर्जी फर्में कायम की, जिनका मकसद सिर्फ जाली टैक्स इनवॉइस और ई बिल तैयार करना था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।